کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ بغیر آواز کے بھی اللہ کے اتنے قریب کیسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے چہرے پر سکون جھلکتا ہے، ان کے دل میں عجیب سی روشنی ہوتی ہے اور ان کی دعا مانگنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ انسان بغیر زبان ہلائے، بغیر کسی کو دکھائے، صرف اپنے دل میں اللہ کو اس طرح یاد کرے کہ اس کا دل بدل جائے، اس کی تقدیر سنور جائے اور اس کے گناہ مٹنے لگیں؟ اگر آپ بھی یہ راز جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا ذکر ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے مگر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ یہ وہ راز ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، اور جو سمجھ لیتا ہے اس کی زندگی ویسی نہیں رہتی جیسی پہلے تھی۔ یہ بات اہل تصوف کی تعلیمات میں بار بار بیان ہوئی ہے کہ ذکر صرف زبان کا نام نہیں بلکہ دل کی حاضری کا نام ہے، اور شمس تبریز کی طرف منسوب اقوال میں بھی یہی روح جھلکتی ہے کہ اصل ذکر وہ ہے جو انسان کے اندر ہو، جو اس کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، نہ کہ صرف الفاظ کی تکرار رہ جائے۔ خاموش ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کچھ نہ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اس طرح اللہ کے سامنے حاضر کرے جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو، اور یہی کیفیت احسان کی بنیاد ہے جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ خاموش ذکر دراصل دل کی بیداری کا نام ہے۔ جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کو دنیا کی فکر سے ہٹا کر صرف اللہ کی طرف موڑتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل نرم ہونے لگتا ہے، اس کے اندر سے غفلت ختم ہونے لگتی ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ اس کے قریب ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے صوفیاء کرام نے ذکر قلبی کہا ہے، یعنی ایسا ذکر جو زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے ہوتا ہے۔ اس میں نہ کوئی شور ہوتا ہے، نہ کوئی دکھاوا، بلکہ صرف بندہ اور اس کا رب ہوتا ہے۔ اہل علم نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ قرآن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس ذکر کی روح یہ ہے کہ دل بھی اس میں شامل ہو۔ اگر زبان ذکر کر رہی ہو مگر دل کہیں اور ہو تو وہ ذکر اپنی اصل تاثیر کھو دیتا ہے، جبکہ خاموش ذکر میں انسان پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ وہ اپنے دل میں اللہ کا نام دہراتا ہے، اس کی صفات پر غور کرتا ہے، اس کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اور اس طرح اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرنے لگتا ہے۔ شمس تبریز کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنے اندر کی دنیا کو سنوارنا چاہیے، کیونکہ اصل سفر باہر کا نہیں بلکہ اندر کا ہے۔ جب دل درست ہو جاتا ہے تو انسان کا ظاہر بھی درست ہو جاتا ہے، اور خاموش ذکر اسی اندرونی اصلاح کا ایک مضبوط ذریعہ ہے، کیونکہ یہ انسان کو خود احتسابی سکھاتا ہے، اسے اپنے رب کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے، اور اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی انسان اس ذکر کو اپناتا ہے تو اس کی زندگی میں عجیب تبدیلی آتی ہے۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں، وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے کیونکہ اسے ہر لمحہ اللہ کی یاد رہتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ذکر صرف ایک عمل نہیں رہتا بلکہ انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ذکر تنہائی میں کیا جائے، جو صرف اللہ کے لیے ہو، جو دل کی گہرائی سے نکلے، وہی سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے، کیونکہ اس میں ریا نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، صرف اخلاص ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک اخلاص ہی سب سے قیمتی چیز ہے۔ جب بندہ اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہی قرب الہی کی ابتدا ہے۔ خاموش ذکر کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو سکون دیتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف شور ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے،
वहां अगर कोई चीज दिल को हकीकी सुकून दे सकती है तो वो अल्लाह का जिक्र है। और जब ये जिक्र दिल के अंदर हो, खामोशी के साथ हो, तो इसका असर और भी गहरा हो जाता है। इंसान के दिल से खौफ निकलने लगता है, बेचैनी खत्म होने लगती है और एक अजीब सी तमानियत उसके अंदर पैदा हो जाती है। और ये तमानियत सिर्फ वक्ती सुकून नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान की पूरी शख्सियत को बदल देती है। वो हालात के तूफान में भी साबित कदम रहने लगता है, मुश्किलात में भी उम्मीद नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका ताल्लुक उस जात से जुड़ जाता है जो हर चीज पर कादिर है। यही वो कैफियत है जिसकी तरफ अहले दिल इशारा करते हैं कि जब दिल अल्लाह के जिक्र में डूब जाए तो फिर दुनिया की परेशानियां उस पर वैसा असर नहीं डाल सकती जैसा पहले डालती थीं। खामोश जिक्र सिखाता है कि बंदा अपने दिल की हिफाजत करे, क्योंकि दिल ही वो जगह है जहां अल्लाह की याद उतरती है। अगर दिल गुनाहों, हसद, कीना और दुनिया की मोहब्बत से भरा हो तो वहां जिक्र का नूर ठहर नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि इंसान अपने दिल को साफ करे, तौबा करे और आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर ऐसी जगह बनाए जहां अल्लाह की याद बस सके। यही वजह है कि सूफिया किराम हमेशा दिल की इस्लाह पर जोर देते रहे हैं, क्योंकि जब दिल दुरुस्त हो जाता है तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद दुरुस्त होने लगता है। शम्स तबरेज से मंसूब तालीमात में एक अहम पैगाम यह भी मिलता है कि अल्लाह को पाने के लिए शोर नहीं बल्कि सच्चाई चाहिए, दिखावा नहीं बल्कि इखलास चाहिए। और यही खामोश जिक्र की असल रूह है। जब बंदा तन्हाई में बैठकर अपने रब को याद करता है, बगैर किसी को दिखाए, बगैर किसी तारीफ की ख्वाहिश के, तो यही वो लम्हा होता है जब उसका दिल हकीकत में जिंदा होना शुरू होता है। और जब दिल जिंदा हो जाए तो फिर जिक्र सिर्फ मखसूस वक्त तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इंसान की सांसों में शामिल हो जाता है। वो बाजार में हो या घर में, तन्हा हो या लोगों के दरमियान, उसका दिल हर हाल में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता है। यही वो मकाम है जिसे बाज अहले इल्म ने दवा में जिक्र कहा है, यानी हर हाल में अल्लाह को याद रखना। और यही वो कैफियत है जो इंसान को गुनाहों से बचाती है, क्योंकि जब दिल में अल्लाह की याद हो तो इंसान खुद ही बुराई से रुकने लगता है। खामोश जिक्र का एक और असर यह है कि यह इंसान को आजिज़ी सिखाता है, क्योंकि जब बंदा अपने दिल में अल्लाह की अजमत को महसूस करता है तो उसे अपनी कमजोरी और बेबसी का एहसास होता है। वो तकब्बुर छोड़ देता है, लोगों के साथ नरमी से पेश आता है और उसके अंदर रहम और मोहब्बत पैदा होने लगती है। यही वो तब्दीली है जो एक आम इंसान को खास बना देती है। यही वजह है कि अहले तसव्वुफ हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जिक्र को सिर्फ अल्फाज तक महदूद न रखा जाए, बल्कि उसे दिल तक पहुंचाया जाए, क्योंकि असल मकसद यही है कि इंसान का दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाए। और जब यह ताल्लुक मजबूत हो जाए तो फिर जिंदगी का हर पहलू सनरने लगता है, इबादत में लज्जत आने लगती है, दुआ में असर पैदा होने लगता है और इंसान को अपने रब की कुर्बत महसूस होने लगती है। बस अगर आप वाकई इस राज को पाना चाहते हैं तो आज ही से कोशिश करें कि कुछ वक्त तन्हाई में गुजारें, अपने दिल को दुनिया की फिक्र से हटाएं और खामोशी के साथ अल्लाह को याद करें। शुरू में शायद दिल भटके, ख्यालात आएं, लेकिन सब्र करें, क्योंकि यही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान अपने रब के करीब पहुंचता है। और यही वो राज है जो दिलों को बदल देता है, जिंदगियों को संवार देता है और इंसान को हकीकी सुकून अता करता है। और जब बंदा इस रास्ते पर साबित कदम हो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एक ऐसी रोशनी पैदा होती है जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। ये रोशनी ना आंखों से नजर आती है और ना ही किसी जाहिरी पैमाने से नापी जा सकती है, बल्कि ये दिल के अंदर महसूस होती है। और यही वो नूर है जिसके बारे में अहले दिल कहते हैं कि यह अल्लाह के जिक्र का असर है। ये वो कैफियत है
जिसमें बंदा अपने रब के साथ एक ऐसा ताल्लुक महसूस करता है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिल सकता। जब खामोश जिक्र दिल में जगह बना लेता है तो इंसान के लिए गुनाह करना मुश्किल होने लगता है, क्योंकि वो हर वक्त अपने रब की याद में होता है। वो जानता है कि अल्लाह उसे देख रहा है, सुन रहा है और उसके दिल के हाल से भी वाकिफ है। यही एहसास उसे बुराई से रोकता है और नेकी की तरफ माइल करता है। और यही असल कामयाबी है कि इंसान का दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाए। यह भी समझना जरूरी है कि खामोश जिक्र कोई जादुई अमल नहीं कि एक दिन में सब कुछ बदल जाए, बल्कि यह एक सफर है, एक मुसलसल मेहनत है जिसमें इंसान को सब्र, इस्तिकामत और इखलास के साथ आगे बढ़ना होता है। शुरू में दिल भटकता है, ख्यालात मुंतशिर होते हैं, लेकिन जो शख्स हिम्मत नहीं हारता वो आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम तक पहुंच जाता है जहां उसका दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ माइल रहता है। अहले इल्म की रहनुमाई के मुताबिक जिक्र की असल बुनियाद कुरान और सुन्नत है, और दिल का जिक्र भी उसी वक्त फायदा देता है जब वो शरीयत के दायरे में हो, यानी इंसान फराइज की पाबंदी करे, हराम से बचे और अपने अमाल को दुरुस्त करे। क्योंकि सिर्फ जिक्र काफी नहीं जब तक अमल दुरुस्त ना हो, और यही तवाजुन वो चीज है जो इंसान को गुमराही से बचाता है। शम्स तबरेज की तरफ मंसूब रूहानी फिक्र में भी यही पैगाम मिलता है कि इंसान अपने रब के साथ सच्चा ताल्लुक कायम करे, ना कि सिर्फ जाहिरी चीजों में उलझा रहे, क्योंकि असल कामयाबी दिल की इस्लाह में है। और खामोश जिक्र इसी इस्लाह का एक अहम जरिया है जो इंसान को अपने अंदर झांकने का मौका देता है, उसे अपनी कमजोरियों का एहसास दिलाता है और उसे अपने रब के सामने झुकने पर आमादा करता है। जब बंदा इस कैफियत को पा लेता है तो फिर उसकी दुआ में भी एक खास असर पैदा हो जाता है। वो कम मांगता है मगर दिल से मांगता है, और अल्लाह दिलों की बात को खूब जानता है। इसीलिए ऐसे बंदे की दुआ रद्द नहीं जाती, क्योंकि उसके दिल में इखलास होता है, और इखलास ही वो चीज है जो अमल को कबूलियत तक पहुंचाती है। आखिरकार खामोश जिक्र इंसान को इस मकाम तक ले जाता है जहां वो दुनिया में रहते हुए भी दिल से दुनिया से आजाद हो जाता है। उसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाता है, वो हर हाल में अपने रब पर राजी रहता है, और यही वो सुकून है जिसकी तलाश में आज का इंसान भटक रहा है, मगर उसे मालूम नहीं कि यह सुकून उसके अपने दिल के अंदर छुपा हुआ है। बस उसे जगाने की जरूरत है, और यह बेदारी सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही मुमकिन है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी इस राज को अपनाना चाहते हैं? क्या आप भी अपने दिल को जिंदा करना चाहते हैं? क्या आप भी वो सुकून पाना चाहते हैं जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिल सकता? अगर हां, तो आज ही से आगाज करें। चंद लम्हे निकालें, खामोशी इख्तियार करें और अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ दें, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। और जब इंसान इस रास्ते पर मजीद आगे बढ़ता है तो उसे यह एहसास होने लगता है कि असल तब्दीली बाहर नहीं बल्कि अंदर हो रही है। वही दिल जो पहले बेचैन रहता था अब सुकून महसूस करता है। वही आंखें जो हर चीज में कमी तलाश करती थीं अब अल्लाह की नेमतों को पहचानने लगती हैं, और वही जबान जो शिकायत करती थी अब शुक्र अदा करने लगती है। ये सब खामोश जिक्र का असर होता है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की पूरी जिंदगी को अपने हिसार में ले लेता है। यहां एक अहम बात समझना जरूरी है कि दिल का जिक्र सिर्फ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की अजमत को महसूस करने का नाम है। जब बंदा अपने दिल में ये यकीन पैदा कर लेता है कि मेरा रब मेरे करीब है, मेरी हर बात सुन रहा है, मेरी हर हालत को जानता है, तो फिर उसके दिल में एक ऐसी कैफियत पैदा होती है जो उसे हर लम्हा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखती है। यही वो कैफियत है जिसे अहले दिल ने हुजूर कल्ब कहा है, यानी दिल का अपने रब के सामने हाजिर होना। और यही वो मकाम है जहां बंदा तन्हाई में भी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका दिल अपने रब के साथ जुड़ा होता है। वो लोगों के हुजूम में भी अपने रब को नहीं भूलता,
اور तन्हाई में भी उसकी याद से गाफिल नहीं होता। यही खामोश जिक्र की सबसे बड़ी पहचान है कि ये इंसान को हर हाल में अल्लाह के करीब कर देता है। शम्स तबरेज की तालीमात की रोशनी में एक और गहरी बात यह समझ आती है कि जब तक इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिशात को काबू में नहीं लाता, उस वक्त तक दिल का जिक्र अपनी मुकम्मल तासीर नहीं दिखाता, क्योंकि नफ्स इंसान को दुनिया की तरफ खींचता है, जबकि जिक्र उसे अल्लाह की तरफ ले जाता है। और यही अंदरूनी कश्मकश इंसान का असल इम्तिहान है। जो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है, वही हकीकी सुकून पा लेता है। खामोश जिक्र इंसान को सब्र सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है, और सबसे बढ़कर ये उसे अपने रब पर भरोसा करना सिखाता है। जब बंदा हर हाल में अल्लाह को याद रखता है, तो फिर वो हालात से नहीं डरता, बल्कि अल्लाह पर एतमाद करता है, और यही एतमाद उसे मजबूत बनाता है। यही यकीन उसे हर मुश्किल में साबित कदम रखता है। आज के दौर में जहां हर तरफ दिखावा है, हर इबादत को लोगों के सामने पेश किया जाता है, वह खामोश जिक्र एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, जिसमें कोई रिया नहीं होती, कोई निमूद नहीं होती, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अल्लाह के नजदीक वही अमल सबसे ज्यादा महबूब है जो खालिस हो, जो सिर्फ इसी के लिए हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल भी इस नूर से भर जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी सुकून आए, तो आज से एक आदत बना लें। रोजाना कुछ वक्त निकालें, खामोशी में बैठें, अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करें, उसका नाम दिल में दोहराएं, उसकी नेमतों पर गौर करें और उसके सामने अपनी कमजोरियों का एतराफ करें। यही वो रास्ता है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाएगा। याद रखें, यह रास्ता आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जो शख्स सच्चे दिल से उसकी तलाश करता है, अल्लाह खुद उसके लिए रास्ते आसान कर देता है, उसके दिल को हिदायत देता है और उसे अपनी कुर्बत अता करता है। और यही वो कामयाबी है जो इस दुनिया और आखिरत दोनों में इंसान के काम आएगी। अब अगर आप वाकई सफर को शुरू करना चाहते हैं, तो खुद से एक सवाल करें, क्या मैं अपने दिल को अल्लाह के लिए खाली करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपनी मसरूफियात में से चंद लम्हे निकालकर अपने रब के साथ ताल्लुक मजबूत करने के लिए तैयार हूं? अगर जवाब हां में है, तो फिर देर ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात एक छोटा सा कदम इंसान को बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचा देता है। जब भी आप तन्हा हों, जब भी आपका दिल परेशान हो, जब भी आपको लगे कि कोई नहीं समझ रहा, तो बस खामोशी इख्तियार करें, आंखें बंद करें और अपने दिल में अल्लाह को याद करें। यकीन माने, वो आपके दिल की वो बात भी सुन रहा होता है जो आपने अभी कही भी नहीं होती। और यही वो मकाम है जहां बंदा अपने रब के साथ ऐसा ताल्लुक महसूस करता है जो लफ्जों से आगे होता है। न वहां जबान की जरूरत रहती है और ना ही किसी खास तरीके की, बस दिल का झुक जाना काफी होता है, दिल का मान लेना काफी होता है, दिल का इस हकीकत को कबूल कर लेना काफी होता है कि मेरा रब मेरे करीब है, मेरे साथ है, मेरी हर हालत को जानता है। जब ये यकीन मजबूत हो जाता है, तो फिर इंसान के अंदर एक अजीब सी मजबूती आ जाती है। वो तन्हाई से नहीं घबराता, वो लोगों की राय का मोहताज नहीं रहता, क्योंकि उसका सहारा सिर्फ अल्लाह बन जाता है। और यही वो राज है जो खामोश जिक्र इंसान को सिखाता है कि असल ताकत लोगों की तारीफ में नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में है। आहिस्ता आहिस्ता बंदा ये भी सीख लेता है कि हर हाल में अल्लाह को कैसे याद रखना है, खुशी में भी, गम में भी, कामयाबी में भी, नाकामी में भी, क्योंकि उसका दिल हर हाल में अपने रब के साथ जुड़ा रहता है। और यही वो कैफियत है जो इंसान को शुक्रगुजार भी बनाती है और साबिर भी। वो नेमत मिलने पर गुरूर नहीं करता और आजमाइश आने पर मायूस नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि हर हाल में अल्लाह की हिकमत है। शम्स तबरेज की तरफ मंसूब रूहानी पैगाम में यही गहराई नजर आती है।
کہ بندہ اپنے اندر سچائی پیدا کرے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے، کیونکہ جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز انسان کو اندر سے توڑ نہیں سکتی۔ وہ ہر حال میں قائم رہتا ہے کیونکہ اس کا دل ایک مضبوط سہارے سے جڑ چکا ہوتا ہے۔ خاموش ذکر انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، اپنے دل کو بار بار دیکھے کہ کہیں اس میں غرور تو نہیں آ گیا، کہیں اس میں حسد تو نہیں پیدا ہو گیا، کہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا، کیونکہ دل کی یہی نگرانی اصل عبادت کا حصہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو مسلسل بہتری کی طرف لے جاتی ہے۔ جب بندہ اس راستے پر چلتا رہتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک خاص نرمی آ جاتی ہے، وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کی یاد سے نرم ہو چکا ہوتا ہے، اور یہی وہ اخلاق ہیں جو ایک سچے مومن کی پہچان ہوتے ہیں۔ آخر کار خاموش ذکر انسان کو اس حقیقت تک لے جاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، مگر اللہ کی یاد باقی رہنے والی ہے۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو اپنے دل کو اس چیز کے ساتھ جوڑ لے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، نہ کہ ان چیزوں کے ساتھ جو ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بھی زندہ ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی وہ سکون ملے جس کی تلاش میں لوگ دنیا بھر میں بھٹک رہے ہیں، تو اپنے اندر اس خاموش ذکر کو جگا دیں، اسے اپنی عادت بنائیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور دیکھیں کہ کس طرح آہستہ آہستہ آپ کی زندگی بدلنے لگتی ہے، آپ کا دل بدلنے لگتا ہے، اور آپ اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ راز ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اگر انسان سمجھ لے تو پھر اسے کسی اور چیز کی تلاش نہیں رہتی۔ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ راز ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اگر انسان سمجھ لے تو پھر اسے کسی اور چیز کی تلاش نہیں رہتی، کیونکہ جب دل کو اللہ مل جائے تو دنیا کی ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، اور جب دل اللہ سے خالی ہو تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان اندر سے خالی رہتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ بھی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی اس خاموش ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو آج سے، ابھی سے، اسی لمحے سے آغاز کریں، کیونکہ شاید یہی لمحہ آپ کی زندگی کا رخ بدل دے، اور شاید یہی وہ قدم ہو جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، ہمیں وہ خاموش ذکر عطا فرما جس میں اخلاص ہو، جس میں سچائی ہو، جس میں تیری محبت ہو۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے غفلت کو نکال دے، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے بھر دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر حال میں تجھے یاد کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ، ہمیں تنہائی میں بھی اپنا یادگار بندہ بنا، اور ہمیں دکھاوے اور ریا سے بچا لے۔ اے رب، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہماری آنکھوں کو اپنے خوف سے نم کر دے، اور ہمیں اپنی ایسی محبت عطا فرما جس کے بیک ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے۔ آمین۔